नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शलोम, चाइनीज में नि हाओ, जापानीज में konnichiwa। प्रदीप जी, Abaryako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. absolutely wonderful, and of course vanakkam to everyone. Yes. So Pradeep ji, the budget doesn't seem to have enthused the middle class very much. The middle class says, why is it that you always tax us? Why do you always do that? Because you know, I was hearing Mohandas Pai, Mohandas Pai, otherwise a great supporter of Mr. Modi and a great supporter of the BJP. He says, what are you doing? Most of these, as he puts it, most of these budget proposals have come from bureaucrats who have no idea of reality. They are unelected, and so why is the finance minister listening to them? That's the whole point. Like for example, long-term capital gains tax, Pradeep ji. बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अभी तक जो लगता था 20% लगता था, ठीक है सर, 20%, बट दैट 20% वाज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यानी अगर आपने 1 करोड़ में फ्लैट खरीदा कोई 10 साल पहले और वो 1 करोड़ वाला फ्लैट जो है अब कितने का है, उस टाइम का 1 करोड़ अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अब कितने का है, दैट एडजस्टेड विद द प्रॉफिट दैट यू हैव मेड। मतलब 1 करोड़ का फ्लैट अगर अभी आपने जाकर के मान लीजिए 4.5 करोड़ में बेचा, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन द वैल्यू कम्स टू अबाउट 3.5 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर आपका टैक्स लगता 20%, ठीक है साहब, यानी 20 लाख रुपए। लेकिन आज की तारीख में 1 करोड़ के ऊपर अगर आपने 4.5 करोड़ का फ्लैट बेचा है तो 3.5 करोड़ के ऊपर प्रदीप जी 12.5% टैक्स लगेगा। मतलब what are you doing? Now people are not going to invest. The point is people are not going to invest, and if they do, that means you are encouraging the cash economy again. Pradeep ji. No, the Prime Minister, I think he says for salaried employed, middle class के लिए हमने वो standard deduction बढ़ा दिया है, हमने slabs बढ़ा दिए हैं, slabs में जो rates लगता है वो बढ़ा दिए, I mean कम कर दिए हैं. We have given them more relief, more than 15 lakhs, 20%, or 12 to 15 lakhs, 20%, above 15 lakhs you got 30%. So slab rate में relief मिला है, but then all these kind of things where capital gains are concerned, buying and selling of properties, selling of shares, that is where people are suffering. STA बढ़ गया, LTCG आपका बढ़ गया, मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं बाकी सब लोगों को, सीधी सादी बात है। और तीसरी चीज क्या है, व्हाट अबाउट द प्राइस राइज? सर प्राइसेस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है अभी सरकार की तरफ से। जब भी हम लोग कीमतों के बारे में बात करते हैं तो the entire thing gets diverted to something else. You are handing the opposition a huge stick to beat you with. Let's be very clear. No, the आंकड़ा दिया है, they say 2004 to 13, what was the inflation rate and what's the inflation rate now? Sir, inflation rate की बात छोड़िए, yes. अभी मार्केट में कीमतें क्या है उनकी अगर बात करें तो मतलब ये बनता नहीं है ना सर, ये मतलब नहीं बनता है। Let's be very clear. ये तो statistics हो गए, ये तो statistics हो गए। They come up with statistics. मतलब 2004 से 14 तक ये था, 14 से लेके 24 तक ये है। हमने जो भी काम करना है वो दुगना किया है, और जो भी जो liabilities है वो it was higher when Manmohan Singh was there and less when we are there. That's what Prime Minister Modi says. Pradeep ji, these are statistics. बिल्कुल। The fact remains that the middle class, which was the total supporter of Modi ji, is now having second thoughts. Let's be very clear. आज की तारीख में जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय जितने भी लोग हैं भारत के, वो पहले मोदी जी के कट्टर समर्थक थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि भैया कुछ तो करोगे। Apart from what, if we compare each rules, because middle class has always complained. Middle class has never got a due in the budget. Never. Right from in any budget, anywhere. कोई देखते ही नहीं मिडिल क्लास की तरफ, किसको पढ़ाने। Right, if you talk about the best budget for मनमोहन सिंह, जो भी allied है, एक के बाद successive governments, they have never actually bothered about the middle class. कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे? Yes. सर सीधी बात है, this is
दिस इज अ क्लास विच कांट उनका आंकड़ा है कि 70% एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वो उसमें है, तो बाकी सर्विस इंडस्ट्री में है थोड़ा, तो इट इज ऑलवेज निग्लेक्टेड द मिडिल क्लास। कहने का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर इनकम को कोई टैक्स करता नहीं है प्रदीप जी। सीधी बात है, आज की तारीख में आपने 3 लाख रुपए तक आपने कहा नो टैक्स, अब 3 लाख का अगर आप 5 लाख भी कर दें, और जहां तक एग्रीकल्चर इनकम का सवाल है, यू नो एंड आई नो हाउ मेनी पीपल इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स हु ओन thousands of acres of property have registered themselves as agriculturalists। एग्जैक्टली। ठीक है साहब, एक पैसा नहीं देते टैक्स का, करोड़ों रुपए की इनकम है, और आप बोलते हैं कि आप एक पैसा नहीं दे रहे। मतलब ये क्या है? मेरा ये कहना है कि आखिर में मध्यम वर्गीय लोग जो हैं उनको भी इंसाफ चाहिए, और हम सबकी अपेक्षा थी कि मोदी जी की सरकार, स्पेशली मोदी 3.0 में हम सबको इंसाफ मिलेगा ना। आई थिंक वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर ढोने एंड अजय पाठक साहब। अजय पाठक साहब ऑफ द बीजेपी एंड डॉक्टर सुधीर ढोने, आई थिंक दे आर विद अस। अजय पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम, कैसे हैं? जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। डॉक्टर ढोने, हाउ आर यू सर? हाँ सर, फाइन सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो डॉक्टर ढोने, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप साथ में बने रहिए। लेट अस हियर व्हाट अजय पाठक साहब हैज टू से। अजय पाठक साहब, मिडिल क्लास दुखी क्यों है इस बजट को लेकर के? सब लोग उम्मीद करके बैठे थे कि यार इस बार तो अपने को कुछ इंसाफ मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन सर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया, आपने एसटीए बढ़ा दिया, आपने ट्रांसफर फीस ट्रांजैक्शन टैक्स और बढ़ा दिया। जहां जहां पे मिडिल क्लास का बंदा जो इन्वेस्ट करता है थोड़ा बहुत शेयर्स में, तो सर मिडिल क्लास जाए तो कहां जाए? पाठक साहब। भगवान जी, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप जी को बहुत। Yeah, you can't hear. You can't hear. Gentlemen, can we please correct the audio? Mr. Ajay Pathak cannot hear me. अजय पाठक साहब, अभी आपको आवाज आ रही है सर? हेलो। All right, let's go across to Dr. Dhone. Dhone साहब, are you happy with the budget? नहीं, बजट तो देखिए, Please go ahead, sir. बजट जो है ना, बजट में सिर्फ ये तो पॉलिटिकल बजट हो गया। बिहार और आंध्र प्रदेश जिनके भरोसे, जिनके सपोर्ट से सरकार चल रही है, उनके लिए बहुत सारा दे दिया, और बाकी स्टेट जहाँ से रेवेन्यू ज्यादा आता है, जीएसटी ज्यादा आती है, तो उनको कम दिया है। तो ये तो ऐसा हो गया कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा उनके लिए ज्यादा करो, जो राज्य में उनके, हालांकि महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, फिर भी महाराष्ट्र के लोग कुछ नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश और बिहार के जो नेता है वो सपोर्ट विड्रॉल कर सकते हैं, इसलिए उनको उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। तो ये पॉलिटिकल बजट ही हो गया एक प्रकार से। जनता का उसमें कुछ नहीं देखा गया है कि सब देश की जनता अपनी है, सब राज्य अपने हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, अभी ये गुजरात के, बिहार के और आंध्र प्रदेश के बन गए मोदी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में जो ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो पॉलिटिकल अलाइज की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर ढोने, आपने ये कहा है। हाँ सही जी। हाँ। पाठक साहब इज बैक विद अस। जी पाठक साहब, तो क्या मतलब पॉलिटिकल अलाइज जाएंगे क्या? आपको दे देंगे क्या? पाठक साहब अब आप बताएं प्लीज। देखिए बजाज साहब, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी ये पिछले का इन्होंने स्वागत किया है, किस 10 बजट को इन्होंने सराहना किया। कांग्रेस और विपक्षी को बता दो कि ये देश विरोधी है, बजट को भी इन्होंने देश विरोधी बता दिया। कुछ लोग, कुछ सांसद होने के बाद भी सत्ता में नहीं आने का इनको मलाल है। राहुल गांधी अपनी 100 रैलियों में खड़े होकर के सिर्फ एक बात बोलते थे कि तीसरी बार कि बजट सत्र को भी लेकर के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये देश ये जानता है, ये देश बिहार को ये मान के चले हैं कि बिहार से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, आंध्र प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये प्रॉब्लम में रहती है फ्लड से लेकर के सब चीजों में। आजादी के बाद से कांग्रेस ने ऐसी नीतियां एरिया होगा, वहीं पे इंडस्ट्री जाएगी। बिहार में जो जीडीपी का नंबर 2 पे था इस भारत में आजादी के बाद, उसको पूरे गम में। पाठक साहब,
हर चीज के लिए पंडित नेहरू जिम्मेवार हैं। डॉक्टर ढोने, पंडित नेहरू जिम्मेदार समझते हैं ना सर। कांग्रेस के सुधीर ढोने हमारे पास हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तो सर आप नेहरू जी को बोल दीजिए ना रिजाइन करो। प्रॉब्लम अगेन विद द नेट, आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हिच इज रादर सैड। वी हैड two very good guests earlier, Mr. Pathak, now Dr. Dhone again. मिनिमम वेजेस हर सेक्टर में 400 रुपया पर डे होना चाहिए, लीगली गारंटीड एमएसपी होना चाहिए। जो स्टूडेंट के एजुकेशन लोन है, अनपेड है, उसको नहीं चाहते, उसको नहीं करने दे। तो ये 5 डिमांड पाठक साहब चिदम्बरम जी ने रखे, बोले कि बाकी बजट में कुछ है ही नहीं, बट ये डिमांड तो फुलफिल कीजिए। सर बजट में सिर्फ एक चीज नहीं है कि 16 करोड़ रुपए गमले में गोभी उगा सकते हैं, वो बजट में नहीं है। हमारे बजट में ये नहीं है कि अपने बालकनी में 16 करोड़ रुपए की आप गोभी उगा सकते हैं। चिदम्बरम जी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस देश में नहीं अब चलेगा। जो मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश में चलेगी, सीतारमण जी की इस देश में आर्थिक नीतियां चलेगी। 16 करोड़ रुपए की गोभी नहीं उगेगी गमले के अंदर। और नीट की जहां तक बात है, नीट के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाए ना, वो तो सीनियर वकील है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन किया कि ये नीट की परीक्षाएं समाप्त नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने गलत किया। बाकी जहां तक बात रही आम आदमी की, आम आदमी को इस सरकार ने बहुत सारा राहत दिया है। तमाम ट्रेनें चल रही हैं, हर स्टेट को सब कुछ मिला है। ये बजट स्टेट वाइज मिला है, सबको पूरे देश को एकत्रित करने का बजट है, पूरे देश को आगे बढ़ाने का बजट है। इनके दिमाग में ये फोबिया बैठ गया है कि 16 करोड़ रुपए की गोभी हमारे बालकनी में क्यों नहीं उगाई जा रही है, ऐसी अलग अलग बालकनियों में क्यों नहीं उगाई जा रही है। दुरुस्त बात। चिदम्बरम जी के समय में इकोनॉमी का बंटा बैठ गया था। लेकिन पाठक साहब आपने भी तो चिदम्बरम साहब की परंपरा को आगे ही बढ़ाया है। चिदम्बरम साहब के बजट में भी और आपके भी बजट में भी हमेशा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता था। जो सैलरीड क्लास है बेचारी, वो हर तरफ से दबती है, अभी भी दब रही है। सर एग्रीकल्चर इनकम को अभी तक आप टैक्स नहीं कर रहे, किस बात से डरते हैं? जहां पे करोड़ों की आमदन है, हजारों एकड़ जमीन लोगों के पास है, अपने आप को मतलब धोखे से सरकार को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं कि भाई हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं। कहां एग्रीकल्चरिस्ट हैं? जिसके पास एक छोटा सा फार्म हाउस भी है, वो भी अपने आप को फार्मर बताता है और इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है। सर आप मुझे बताइए, why should the middle class be taxed all the time? पाठक साहब प्लीज। बजाज साहब, मिडिल क्लास को भी बहुत सारी राहत दी गई है। मिडिल क्लास को भी बहुत सारी 25,000 रुपए, अभी 50,000 रुपए टैक्स, उसको 25,000 रुपए ज्यादा किया गया है, तो उस पर तो राहत दी गई ना, बहुत सारी चीजों पे दी गई है। जहां तक फार्मर की बात है, इस देश में 45% नौकरियां कृषि से ही पैदा होती है। इंडस्ट्री से सिर्फ 11% नौकरी पैदा होती है। जो कारखाने हैं सिर्फ 11.2% नौकरियां पैदा होती हैं। बाकी की नौकरियां 45%। सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरी देने वाला सेक्टर है तो कृषि क्षेत्र है। 45% इस देश में नौकरियां कृषि क्षेत्र से पैदा होती है। तो कृषि पे टैक्स लगाना उचित नहीं है और कृषि को इससे बाहर ही रखा जाना सर्वथा उचित है। कृषि पे हम टैक्स लगाने के लिए बिल्कुल भी उस पे नहीं है। हाँ, जो बड़े फार्मर हैं उनके लिए जरूर नीतियां बनानी चाहिए, जिनके पास 50 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, जिनके पास 25 एकड़ से ऊपर फार्मिंग है, जिनके पास 100, 200, 500, 1000 एकड़ की फार्मिंग है, उनके ऊपर जरूर नीति बनानी चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सरकार जरूर सोचेगी, सरकार उस पर जरूर करेगी। लेकिन सर जैसे पाठक साहब मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। आपने जो बात कही है, जैसे 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए एग्जम्पशन है, टैक्स एग्जम्पशन है। उसी तरीके से आप फार्मिंग में 10 या 15 लाख तक आप एग्जम्पशन दे दीजिए, उसके ऊपर जो भी आमदन होती है उसको पे तो उस पे तो टैक्स लगना चाहिए ना सर। बताएं सर। नहीं बजाज साहब, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। 10-15 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कृषि के 15 लाख रुपए तक टैक्स नहीं, मिनिमम 50 लाख से ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्योंकि जिसके पास 5 एकड़ की खेती है
मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि अगर मेरे पास 5 एकड़ खेती है तो 2 फसल मिला करके हमारे यहाँ जो गेहूं, चावल, अरहर और तिलहन या आलू और अदर चीजें पैदा होती है, उसको मिला करके एक 15-20 लाख रुपए का साल में हम टर्नओवर कर पाते हैं। लेकिन सर मैं टर्नओवर पे टैक्स नहीं बोल रहा हूं, मैं टर्नओवर पे टैक्स नहीं बोल रहा हूं, आफ्टर एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, आफ्टर एक्सपेंडिचर एक्चुअल इनकम पे। सर एक्चुअल इनकम 50 लाख के ऊपर लगनी चाहिए, कृषि में 50 लाख के ऊपर लगनी चाहिए हमारी। ऐसे मैं तो मैं बहुत सारे लेटर भी लिखा हूँ, पिछले भी उनको लिखा था, क्या बोलते हैं, चलिए कहीं से तो शुरुआत हो। अभी भी कृषि मंत्री को मैंने लिखा ना पाठक साहब, दूसरा सर आई एग्री विद हिम, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आरोप आप पर है जो कांग्रेस लगाए कि कांग्रेस ने यह कहा कि बीजेपी एंड आरएसएस इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज एजुकेशनल सेक्टर। आप इंडिया एजुकेशनल सेक्टर को बर्बाद कर रहे हो, आरएसएस और बीजेपी मिलके। हायर एजुकेशन बजट आपने 9,600 करोड़ कम कर दिया है, आईआईटी आईआईएम का बजट भी आपने कम कर दिया है। तो खास करके एजुकेशन सेक्टर पे कांग्रेस ने खड़गे साहब ने हाईलाइट कर दिया कि बीजेपी एंड द आरएसएस conspired to bring down the budget where education sector is concerned. पाठक साहब, प्रदीप जी, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं। 2014 में बजट कितना था और 2024 में बजट कितना है? ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है। 2014 का बजट और 2024 के बजट की आप तुलना नहीं कर सकते। 2014 के बजट से और 2024 के बजट में जमीन आसमान का फर्क है। 16,000 करोड़ और 45,000 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज हमारी इकोनॉमी दुनिया के 5वीं टॉप की इकोनॉमी है। आज ये इस बजट से 2026 और 27 में आगे और 3 बजट पेश करते करते हमारा जो विजन है वो हम थर्ड इकोनॉमी बनने के हैं। और आज कृषि का रकबा बढ़ा है, उनके समय से 9.5% कृषि का रकबा बढ़ा है। कृषि का रकबा अगर 9.5% बढ़ा है तो किसान खेती कम थोड़ी कर रहे हैं। आज अनाज की पैदावार दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। दुनिया को हम अनाज देने की स्थिति में है। हाँ, हमारे यहाँ एक चीज की समस्या है, उसके लिए भी अलग से फंड रखा गया है कृषि के अंदर, वो है दलहन और तिलहन। उसके लिए भी दलहन और तिलहन के लिए अलग से 30,000 करोड़ रुपए का इस फंड में प्राविधान किया गया है। और वो भी उस बजट को बढ़ाने के लिए 100 ऐसी फसलों को 100 ऐसी फसलों के लिए भी पैसा प्रावधान किया गया है कि 100 ऐसी नई फसलें उगाई जाएगी जिससे ज्यादा पैदावार हो, किसानों को ज्यादा फायदा हो। और 10,000 ऐसे सेंटर खुलेंगे कृषि के जहां से नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंच सके। सॉयल टेस्ट का आइडिया इस देश में प्रधानमंत्री ले आए। एक तरह से वो जमीन का हेल्थ टेस्ट है कि इस जमीन में क्या पैदा करने से अच्छी पैदावार होगी। कांग्रेस 64 साल इस देश में राज की और सिर्फ किसान को गर्त में डाल करके रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पाठक साहब, लेकिन जो एक नैरेटिव चल रहा है, भले ही आप कहें, आप जो कह रहे हैं मैं उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी नैरेटिव चल रहा है और लोग उस नैरेटिव को मान रहे हैं, भले आप मानिए या ना मानिए, जैसे कि चुनाव के दौरान कहा गया था संविधान खतरे में है, आज की तारीख में यह कहा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। साथ में बार बार यह भी कहा जा रहा है कि इस बजट में सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र है और कुछ नहीं है ना। माय पॉइंट इज सर, अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना ये बताना कि यार 76,000 करोड़ का हम इतना बड़ा पोर्ट बना रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को इग्नोर किया जा रहा है? दैट द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 76,000 करोड़। तो ये जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? सर बताएं पाठक साहब। नहीं बता रहे हैं ना, देखिए उनके वितंडावाद खड़ा करने से कुछ नहीं होता। इस देश की जनता ने 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नहीं दिया है तीसरी बार। 240 सीटें देने का मतलब है कि उनको इग्नोर किया है, नहीं तो तीसरी बार वो सत्ता में आ जाते। और सिर्फ 76,000 करोड़ रुपए की नहीं बात है, 1,000 करोड़ रुपए का रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। अभी कल गडकरी साहब ने बताया
कि यहाँ पे 1600 करोड़ रुपए का रोड का काम चल रहा है, और सोनी साहब ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का महाराष्ट्र के अंदर रेलवे का काम चल रहा है। तो ये झूठी चीजें, झूठा नैरेटिव खड़ा करना राहुल गांधी और उनकी टीम का काम है। लेकिन इस देश सरकारी नौकरी, अजय पाठक साहब, एक छोटी सी और टिप्पणी करता हूं। कर्नाटक में 1.5 साल हो गए राहुल गांधी की सरकार बने, वजह साहब 1.5 साल हो गया कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार बने। 1162 किसानों ने आत्महत्या की है, 1162 किसानों ने आत्महत्या की है। कहां गया फटाफट, कहां गया उनकी किसानों की नीतियां, कहां गई उनकी पॉलिसी कर्नाटक के अंदर? क्यों 1162 किसानों ने आत्महत्या की 1.5 साल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से? ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। सरकारी, अजय पाठक साहब, दूसरा चार्ज आप पे है कि सरकारी नौकरी, आप भले कह रहे हैं कि युवा सशक्तिकरण के लिए 3 स्कीम्स हम लोग लेके आए, 2.9 करोड़ युवाओं को नौकरी की तरफ आप कर रहे हो। 500 टॉप कंपनियों में जो बालक है हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलते हैं, अप्रेंटिसशिप उनको मिलेगा 1 करोड़ लोगों को। मगर कांग्रेस आपको पूछ रहा है सरकारी नौकरी में क्यों भर्ती नहीं हो रहा है? आप पुरानी पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जातीय जनगणना, जो राहुल गांधी जी बार बार चिल्लाकर बोल रहे जातीय जनगणना करो, ये करने से बहुत सारे हल, महाराष्ट्र के भी हल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब मुद्दे पर आप थोड़ा स्लो क्यों है? स्लो पाठक साहब। देखिए, सबसे पहला जाति जनगणना पे मैं आपको प्रदीप जी जवाब देता हूं। हाँ, कांग्रेस को जवाब देता हूं, आपको नहीं, सॉरी कांग्रेस को जवाब देता हूं। कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, 3 जगह कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस कर्नाटक में जाति जनगणना करा चुकी है, उसको क्यों नहीं पब्लिक फोरम पे ले आती, क्यों नहीं बाहर करती, क्यों नहीं विधानसभा में उसकी रिपोर्ट रखती? दूसरा, बाकी की जगह 2 जगह जो सरकार है उनको किसने रोक रखा? दोनों जगह जाति जनगणना कराए, ये उनका राइट है। सिर्फ और सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, इस देश में वितंडावाद खड़ा करने से नहीं चलेगा, इस देश में नैरेटिव खड़ा करने से नहीं चलेगा। राहुल गांधी झूठी और झूठी चीजें करते हैं। राहुल गांधी कल जो लोकसभा के अंदर हुआ उस पर जवाब देंगे कि नहीं? एक पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा होकर के लोकसभा में कहता है कि वो एक खालिस्तानी का समर्थन करता है, इस देश को बांटने वाले का समर्थन करता है। राहुल गांधी खड़े रहते हैं। तो पाठक साहब एक मिनट सर माफी सर, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। अरे अजय पाठक जी 1 मिनट जरा सुन भी लीजिए। बहुत टाइम है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास टाइम है तो हमारे पास बहुत टाइम है। अमृतपाल सिंह जी को चुनाव में खड़े क्यों होने दिया? उनको चुनाव लड़ने क्यों दिया? अगर आपको लगता कि वो खालिस्तानी है तो वो उस आदमी को चुनाव कैसे लड़ने दिया और वो इलेक्ट हो गया? आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग को क्या उसके पेपर्स को कैंसल नहीं करना चाहिए था? आपसे पूछ रहा हूं सर, चुनाव में उसको लड़ने कैसे दिया? डिब्रूगढ़ जेल में है, उसके खिलाफ टेररिज्म का चार्ज है। जो चन्नी साहब है उन्होंने क्या कहा? चन्नी ने यह कहा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत के आए हैं, इसका मतलब उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं होगी। मैं तो आपसे पूछता हूं, इलेक्शन कमीशन ने अमृतपाल सिंह को लड़ने कैसे दिया? अब आप बताएं सर पाठक साहब। ये विषय ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है जी, ये विषय देश का है जी और बिल्कुल। ये चुनाव आयोग से पूछना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। Certainly he should never have been allowed to stand for election. छोटे छोटे मामले में नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सामने आकर के उस पे अपना वर्डिक्ट देता है। इस मामले में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया? I agree with you. जब चुनाव की घोषणा हो गई तो सरकार के हाथ में सब चीजें नहीं होती है। ये चुनाव आयोग सरकार का नहीं होता है और ना ही सरकार के कहने से चलता है। ये तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को इस पे क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिया? लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि कांग्रेस की सरकार सर उसके खिलाफ सिर्फ चार्ज है सर, आरोपित है व्यक्ति। अभी उसके खिलाफ कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। अमृतपाल सिंह को सजा नहीं हुई है, सीधी सादी बात है। तो
सर एक मिनट सर, एक छोटा सा जवाब है। जी, बोलिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को खड़ा होकर के उसका समर्थन करना चाहिए लोकसभा में कि इसको, ये खालिस्तानी सेपरेट, अभी इसको जब तक सजा नहीं हो जाती है तब तक हम इसके साथ रहेंगे। ये लोकसभा में एलओपी को खड़ा होकर के कहना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए कि हमारी दादी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो थी, उनकी हत्या करने वाले खालिस्तानियों का, या भेड़ की हत्या करने वाले खालिस्तानियों के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला ये अमृतपाल सिंह, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन सर मेरा ये कहना है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ली गई? जब इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे तब ऑब्जेक्शन लेनी चाहिए थी। अब वो जीत के आ गया है, जेल में है। मेरा ये कहना पॉलिटिकल सर्कल्स में ये जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि वो आतंकवाद से मुक्त हो गया। जीतने का मतलब ये सर्टिफिकेट उसको थोड़ी मिला है कि वो आतंकवादी नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल सर्कल्स में यह है कि बिना होम मिनिस्ट्री के टैक्सेड सपोर्ट, क्या अमृतपाल सिंह जो असम के जेल में है, डिब्रूगढ़ जेल में आके यहाँ पर पंजाब में चुनाव के फॉर्म भरना, ये करना थोड़ा सस्पिशियस है। तो क्या देखिए, नहीं सर, क्या गृह मंत्रालय ने उसको सपोर्ट किया? प्रदीप जी, आप गलत कोट मत करिए। ये जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो वो सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वो सब चुनाव आयोग के हाथ में रहता है। ये सारा काम चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में दखल क्यों नहीं ली? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आगे आई? छोटी छोटी चीजों में सुप्रीम कोर्ट जब आगे आती है तो देश के प्रति इतनी बड़ी जब चीज हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए था? सर, इलेक्शन कमीशन को रिफ्यूज करना चाहिए था, राजीव कुमार जी को बोलना चाहिए था वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों नहीं किया? तो आप एक्शन लीजिए ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्यों नहीं एक्शन लेकर तो उसको जेल में डाले हैं? हम ही तो एक्शन लिया है, एक्शन लेकर के उसको जेल में डाले हैं। सर, एक्शन लेके वो आपने जेल में जरूर डाला है, लेकिन सर पहले पंजाब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। लेट्स बी वेरी क्लियर। पाठक साहब एक मिनट सीक्वेंस सर, क्रोनोलॉजी समझिए। उसको सबसे पहले पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर एनआईए आई, उन्होंने उसको अपने ताबे में ले लिया। मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में वो डिब्रूगढ़ जेल में आदमी बैठा है, चुनाव लड़ रहा है, और अचंभे की बात है चुनाव जीत भी गया। जिसके खिलाफ इतना मतलब गंभीर आरोप है, देशद्रोह, आतंकवाद, और वो आदमी चुनाव जीत करके आ रहा है, और तो और छोड़िए पार्लियामेंट में शपथ भी ले रहा है। तो सर ये जरा अजीब मसला है। वेरी फ्रैंकली वी मस्ट हैव अ वेरी क्लियर कट डायरेक्शन ऑन दिस फ्रॉम समवेयर और द अदर, कि भाई जिसके खिलाफ आतंकवाद का आरोप हो उसको आप चुनाव में नहीं लड़ा सकते। सीधी सादी बात है, ऐसा कुछ होना चाहिए। पाठक साहब, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसके आपके बातों से 100% सहमत हूं कि अगर किसी के ऊपर इस तरह का चार्ज है तो उसको चुनाव लड़ने का राइट ही नहीं होना चाहिए। करेक्ट। मैं वही तो बोल रहा हूं, दो जगह है इसके लिए। एक, जब चुनाव आचार संहिता लग गई थी तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को एक्शन लेना चाहिए था। चुनाव आयोग अपनी उससे बंधा हुआ है। चुनाव आयोग कि जिसके ऊपर चुनाव आयोग की एक सीमा है उसके ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सीमा तय कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर थी कि सुप्रीम कोर्ट में सीमा तय कर सकता था। अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के वो चुनाव जीत गए इनके प्रकार। और कल चन्नी ने एक बात और गलत करी वहां पे। चन्नी ने बताया कि 20 लाख वोटों से चुनाव जीता है। नहीं, उसने कहा 20 लाख वोट उसको पड़े हैं। उसने कहा 20 लाख वोट पड़े हैं। झूठ बोला, 20 लाख वोट नहीं पड़े हैं। सब मिलाकर के 8 लाख वोटिंग हुई, 4 लाख वोट उसको पड़े, 4 लाख कुछ उसको वोट पड़े, 2 लाख आम आदमी पार्टी को पड़े, 2 लाख कांग्रेस को पड़े। ये झूठ बोलने का काम उन्होंने किया, पूरी तरह से उसके पक्ष में, खालिस्तानियों के पक्ष में। राइटफुली स्पीकिंग, तो कहने का मतलब है चन्नी साहब, जो कुछ चन्नी साहब ने बोला स्पीकर साहब उसके खिलाफ एक्शन लें। सीधी बात है, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अब नोटिस उसकी गई है, उस पर एक्शन भी होगा, उस पर सब चीज होगा। आप चिंता मत करिए बजा साहब, सब चीज होगा। पाठक साहब, दूसरा महाराष्ट्र में बहुत चर्चा का विषय है लाड़की दीदी स्कीम। लाड़की दीदी स्कीम इतना चर्चे में है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही पूछ रहे कि इसका फाइनेंस कैसे हो पाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस दिस स्कीम? जिनका कहना है 46,000 करोड़ का ईयरली एक्सपेंडिचर है, ये कहां से आएगा पैसा उसका पता नहीं है।
तो तरह तरह के आरोप, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, अलग यहां तक कि राज ठाकरे जी भी आलोचना कर रहे हैं कि पैसे आपको पॉट होल्स कवर करने के लिए पैसे नहीं है, मगर ये कहां से पैसे लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे पाठक साहब? वो तो वित्त मंत्री जी ने उसी दिन बता दिया कि हम कहां से लेकर के आएंगे पैसे। दोनों मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा चीज क्लियर कर दिया। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस के पेट में तो दर्द होता ही होगा ही कि गरीबों को कोई योजना आप चालू कर दीजिए। ये तो खटाखट 8,500 रुपए का फॉर्म भरवा करके अपने घर में लोग लेकर के बैठ गए, और जब गरीब बहने लाइन लगाने लगे तो वहां तमाम बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करके उनको भगाने लगे। तो जीत गए थे क्या ये? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप अपने आप ही चालू करिए। जो 3 सरकारें कांग्रेस की है, करेक्ट, वहां आप दुरुस्त बात है, करना चाहिए, और चालू करके दीजिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम देंगे वैसे उसी तरह से देंगे जैसे मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम महाराष्ट्र में भी देंगे। शरद पवार सर, महाराष्ट्र में यह कहा जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, तो इसके पैसे कहां से लाएंगे? बता कोई कितने 46,000 करोड़ के 4,600 करोड़, 46,000 करोड़ चाहिए होंगे इसके लिए साल के। 46,000 करोड़ सर, ये पैसा मतलब रिसोर्सेज हैं इतने महाराष्ट्र में कि हम लोग मोबाइल पिछला 2.5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया। नहीं तो आपका नहीं तो 46,000 करोड़ हैं क्या अपने पास इस स्कीम के लिए? 46,000 करोड़ हैं क्या महाराष्ट्र के पास ये स्कीम देने के लिए, स्कीम सफल बनाने के लिए? बिल्कुल है सर, हम देंगे। हमारी योजनाओं को हम पूरा करते हैं। हमारा संकल्प पत्र जितना भी रहा है उसको एक संकल्प पत्र को हमने पूरा किया है। कौन सी ऐसी योजना है जो हम ले आए अपने घोषणा पत्र में और उसको अधूरा छोड़े हैं? पिछली बार की सरकार ने, देवेंद्र जी की सरकार जब थी यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर 2014 से 2019 के अंदर हमने जो संकल्प पत्र किया था 99% संकल्प पत्र की चीजें हमने पूरा करके दिखाया और सरप्लस हमने बनाया था। 2.5 साल की सरकार जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की चली, लेकिन अभी तो फडणवीस साहब की सरकार नहीं है ना सर, अभी तो फडणवीस साहब की सरकार नहीं है। देखिए उसी का नतीजा। हाँ ठीक है, लेकिन हमारी सरकार तो हमारी चल रही है ना, हमारे तीनों लोगों के गठबंधन में सरकार चल रही है और अगली बार हमारी सरकार और मजबूती से आएगी। सब चीज हम कर युवा न्याय आप पे चार्ज है कांग्रेस का कि आपने कांग्रेस के स्कीम को कॉपी किए। युवा न्याय उनका स्कीम था, पहली नौकरी पक्की। राहुल गांधी जी का कहना है कि ये हमारा स्कीम था, मल्लिकार्जुन खड़गे ये हमारा स्कीम था। हमने 1 लाख रुपया प्रॉमिस किया था इंटर्नशिप, 1 लाख रुपया देंगे जो बच्चे बाहर निकल रहे, मगर आप सिर्फ 5,000 रुपया दे रहे हैं और वन टाइम 6,000 रुपया दे रहे। ये आपने कहा और अलग अलग उन्होंने कहा कि मनरेगा, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ मिशन, बट ये कॉपी करने वाले जो आरोप है कैसे देखते हो आप पाठक साहब? नहीं, इसमें तो उनको खुश होना चाहिए ना खड़गे साहब को कि हमारी योजनाओं को उन्होंने कॉपी किया है, फिर आलोचना क्यों कर रही है? अगर उनको ये लगता है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उनकी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी किया है तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन क्या है कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हमारी योजनाएं, वो सिर्फ योजनाओं की घोषणा करके समाप्त कर देते हैं। हमारी योजनाएं 100% जितनी भी योजनाएं पिछले 10 साल से मोदी जी ले आए, 600, मैं पिछली बार भी बताया था 662 योजनाएं पिछले 10 साल में आई है। सबकी सब योजनाएं धरती पे क्रियान्वयन हो रही है और उसी के कारण तीसरी बार सत्ता आई है। एक छोटी सी योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जब जनधन अकाउंट मोदी जी ने बोला खोलने के लिए, तो पूरा विपक्ष और कांग्रेस और यही राहुल गांधी की बाइट निकाल करके आप देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि लोगों के पास पैसे नहीं है और जनधन अकाउंट खोल रहे हैं। 56 करोड़ लोग आज तक बैंक का मुंह नहीं देखे थे और बैंक आज वो बैंक में उनका जनधन अकाउंट भी खुला और उनके अकाउंट में धन भी आए और आज भी उनके अकाउंट में धन है। राहुल गांधी एंड पार्टी सिर्फ निगेटिविटी का काम करती है। राहुल गांधी संविधान को आड़ बना करके इस बार 99% सीटें जीत गए हैं, लेकिन जो बिहेवियर राहुल गांधी कर रहे हैं लोकसभा के अंदर,
आतंकवाद से लेकर के, आतंकवाद का सपोर्ट से लेकर के इस देश में सिर्फ सेपरेटिस्टों को जो खड़े होकर के उनकी भाषा और उनकी जो बातें बोल रहे हैं वहां खड़ा होकर के उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्बन नक्सल का जो प्रतिनिधित्व और उनकी भाषा बोलने का काम कर रहे हैं, जरूर ये देश की जनता। लेकिन पाठक साहब, मेरी एक ऑब्जेक्शन है आपसे, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव है। अजय पाठक साहब, मेरी एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है आपसे, आपके प्रति, बीजेपी की बात कर रहा हूं। आपने सबसे पहली बार, यानी मोदी जी की सरकार ने सबसे पहली बार दुनिया में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जो जनधन अकाउंट आपने खोले और आपने जो अकाउंट लिंक किए आधार कार्ड से, उसकी वजह से जो लीकेजेस होती थी पेमेंट में, वो सारी खत्म हो गई। लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलना शुरू हो गया। इससे बड़ी क्रांति आज तक कभी भारत में नहीं आई है। मेरी ऑब्जेक्शन यह है, इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए ना सर। कांग्रेस क्या बोल रही है, बाकी सब क्या बोल रहे हैं, उससे आपका क्या लेना देना है। मोदी जी ने 370 रिपील किया, सर किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी आर्टिकल 370 को टच करने की भी। सर और तो और छोड़िए, मैं तो पार्लियामेंट कवर कर चुका हूं सर। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी आता था आर्टिकल 370 के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, इट यूज्ड टू बी रिजेक्टेड, केस पे डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। सर यहां पे रिपील कर दिया इसको, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। मेरा यह कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बात करे, मुझको ऐसा लगता है लोगों के जहन में उत्साह ज्यादा बढ़ेगा, आपको ज्यादा समर्थन मिलेगा। और जो 240 सीटें आपको मिली है ना, अगर आप सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाते, मुझको ऐसा लगता कि आपकी 325 या 330 सीटें कहीं नहीं गई थी। ये मेरा विश्लेषण है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अब आप बताएं पाठक साहब। नहीं, राजीव जी, आपने जो बोला वो सही है। हमसे कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, इसको मानने के लिए हम तैयार हैं। हमसे कहीं ना कहीं तो चूक हुई। हमारी योजनाएं जो थी, आपने कश्मीर की बात की, हमारी पार्टी का जन्म ही उसी बात पे हुआ जी। 1952 में जब नेहरू जी आर्टिकल 370 लेकर के आए और 35 लेकर के आए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने खड़ा होकर के पूरी कैबिनेट के अंदर एक सिंगल व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जी कि हम ये होते हुए नहीं देख सकते। दुरुस्त। उसके बाद वो नागपुर आए और नागपुर आकर के उन्होंने जनसंघ से समर्थन मांगा, संघ से समर्थन मांगा, तो संघ के आशीर्वाद से हमारी नई पार्टी बनी जनसंघ, और जनसंघ ने ही ये बीड़ा उठाया कि हम कश्मीर को सेपरेट नहीं होने देंगे, अलग नहीं होने देंगे, उसको खत्म नहीं होने देंगे हमारा। उसके बाद नेहरू जी ने जो किया, फिर बोलेंगे नेहरू जी की बात किया आपने, नेहरू जी ने जो किया कि उनको कश्मीर जाने के पहले गिरफ्तार कर लिया और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। उसके लिए आयोग भी नहीं बैठा, संदिग्ध परिस्थितियों में 3 महीने के अंदर क्या किया गया कि उनकी मौत हो गई। और उसके बाद से हमारी जो पार्टी, हमारी पार्टी का नारा ही था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, उस पार का भी हमारा है। सिर्फ यही नहीं, जो नेहरू की नीतियों से उस पार चला गया वो भी हमारा है। और इस बार के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया कश्मीर के अंदर। दूसरी चीज, जनधन ही अकाउंट नहीं सर, जनधन के साथ साथ आप ये देखिए कि आयुष्मान भारत हेल्थ योजना जो है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है जी, है ना। अब तक 16 करोड़ लोगों ने, 16 करोड़ लोग उसके बेनिफिशियल है। वो लोग हैं जो लोग बड़ी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल का कभी वहां के चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ऐसे 16 करोड़ लोग उसके बेनिफिशियल है, और अभी तो प्रावधान उसको बढ़ाने का सर, तो 350 सीट आनी चाहिए थी ना, तो 350 सीट आनी चाहिए थी। देखिए, झूठ का नैरेटिव कभी कभी चल जाता है, झूठ का सर आपकी गलती है, चल जाता है। मैं तो सीधा आपको ब्लेम करता हूं, दोष आपको देता हूं, आपकी गलती है। आपने इनको सीरियसली ले लिया, गंभीरता से ले लिया, संविधान खतरे में, कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। और एक चीज आप भूल गए जो सबसे बड़ी चीज है, प्रदीप जी, सुनने वाली बात है। पहली बार, सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, चलिए, ये मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आपने शुरू किया है तो मैं बता देता हूं। 1971 की लड़ाई में आपको याद होगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया,
ठीक है साहब, हमारी फौज ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया। आपको मालूम है हमारी फौज को क्या इनाम मिला? आप बताएं सर, अगर आपको याद हो। 2 साल के बाद फिफ्थ पे कमीशन में OROP निकाल दिया गया, 1 रैंक 1 पेंशन को निकाल दिया गया। यह इनाम दिया हमारी फौज को। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद लोगों की पेंशन, लोगों की सैलरी तकरीबन 30 to 40% बढ़ाई गई। इतना बड़ा इंक्रीज आज तक कभी किसी फौजी को नहीं मिला, मोदी जी के आने के बाद मिला। तो मेरा यह कहना है, मेरी बेसिक ऑब्जेक्शन यही है, बीजेपी को अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी, ये मान करके चलता हूं। प्रदीप जी आप बोलें। मेन बेसिक चीज है पाठक साहब, राहुल जी हाँ जी बोलिए। देखिए, आपने कांग्रेस की नीतियों को स्पष्ट कर दिया और उसी समय 92,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हम चाहते तो उसी दिन पीओके ले लिए होते, उसी दिन पीओके पे समझौता हो सकता था, उसी क्षण हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस की इसी नीतियों की वजह से ये सारी चीजें हुई। और तो एक छोटी सी बात बोल करके और प्रदीप जी के पास हम आते हैं। कारगिल युद्ध 2004 में समाप्त, कारगिल युद्ध के बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आ गई। कारगिल विजय दिवस 2009 तक नहीं मनाया गया। 2009 में जब लोकसभा के अंदर एक सांसद बीजेपी के खड़े होकर के ऑब्जेक्शन दिए, उसके बाद से कारगिल दिवस कांग्रेस की सरकार मनाना चालू की। सर आपने बोल ही दिया तो एक और भी चीज बता देता हूं पाठक साहब, एक और भी चीज सुन लीजिए, इसके ऊपर तो मैंने बहुत काम किया है। वो 92,000 जो सैनिक थे ना, जिन्होंने सरेंडर किया था, जिनको बाइज्जत हम लोगों ने वापस भेज दिया, आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उन सबको बलूचिस्तान में भेजा और उनकी स्पेशलिटी क्या थी? लूटना, बलात्कार करना, लोगों को काटना, इनोसेंट लोगों को मारना। 1972 से लेकर के 1974 तक उन लोगों ने यही काम किया बलूचिस्तान में, अब भी कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, और ये अभी भी हो रहा है। जो इश्यूज, जो मेन कांग्रेस का कहना है, जो ट्रेन एक्सीडेंट्स है, ट्रेन एक्सीडेंट्स पर ऑफिशियल आपकी तरफ से कोई प्रकार से ना कोई रेसिग्नेशन हो रहा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर टेरर अटैक्स आज भी हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370, कांग्रेस का कहना है यू ब्लोटिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 आपके लिए जबरदस्त उपलब्धि है देश के लिए और आपके लिए, आप उसको बट व्हाट अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर टेरर अटैक्स? महंगाई मैन मोदी, दूध, दाल, सब्जी, गैस, टोल टैक्स, हर चीज महंगा। तो ये आरोप जो करंट चीज है उस पर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा पाठक साहब। नहीं, देखिए, जहां तक बात है आर्टिकल 370 का या टेरर अटैक का, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर्टिकल 370 और टेरर अटैक दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आज टेरर अटैक जो हो रहा है वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। कश्मीर पूरी तरह से टेरर से मुक्त हो गया है, पूरी तरह से मुक्त हो गया है। तो ये पाकिस्तान और टेरर के एजेंडा को चलाने वालों का एक फ्रस्ट्रेशन है कि छुटपुट घटनाएं यहाँ वहां हो रही है। और इस पे ये नहीं सोचना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए करगिल में खड़ा होकर के किया है, या तो पाकिस्तान को ये समझ आएगी या पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या इस देश के प्रधानमंत्री का, इस देश का जीरो टॉलरेंस है। एक भी आज आतंकवादी 6-6 महीना, साल भर और 10-10 साल तक पलता नहीं है कश्मीर के अंदर। हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको मार दिया जाता है। अगर कोई घटना हो भी गई तो आप देख लीजिए, ये रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों में। उसको मोदी साहब ने हाईलाइट किया, मोदी साहब ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के बारे में बात कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात किए, मोदी साहब ने दोनों में बात किए, बोले हम छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान को वहां से चेतावनी भी दी है। बट क्या एक्शन आज लोग चले कि कब तक सुनेंगे? बिकॉज बचपन से चरण सिंह से जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी हम लोग सुनते आए हैं पाकिस्तान को मैं चेतावनी दे रहा हूं। इतने प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके बाद सब लोग चेतावनी देते आए हैं। मोदी साहब दिखाए सर्जिकल स्ट्राइक, बालों को स्ट्राइक किए, मगर अभी जो स्पेट ऑफ टेरर अटैक्स हो रहा है कंटिन्यूसली 8, 9, 10
कंटिन्यूस आर्मी पर अटैक हो रहा है, आर्मी बेस पर अटैक हो रहा है। यह चिंता का विषय है। जो आपने डोमिसाइल क्लॉज हटा के लोगों को वहां पर पहुंचा दिए, उन पर अटैक हो रहा है, उनको शूट किया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। अब टेरर अटैक वैली से निकल के जम्मू में आ गया है, जम्मू में टेरर होने लगा है। यह चिंता का विषय अजय पाठक साहब। और मोदी साहब ने भले एक्शन दिखाया है, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, बट नथिंग आफ्टर दैट। आज रिटेलिएशन जरूरी है टेरर को कंट्रोल करने में। तो जब ऑपोजिशन चिल्ला रहे तो यू कांट हाइड, आपको जवाब देना पड़ेगा पाठक साहब। नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि महीने 2 महीने के अंदर जम्मू जो है पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। नहीं होगा सर। और वहां की आर्मी नहीं पूरी होगा तरह से वहां एक्टिव हो गई है और समाप्त होने जा रहा है। नहीं होगा सर, मैं आपको बोलता हूं नहीं होगा। आप देखिएगा सर 3 महीने के बाद हम लोग यहीं बैठे होंगे पाठक साहब, मैं आपको बता रहा हूं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी सुन लीजिए। जो असली प्रॉब्लम है जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे नहीं होगा। जो बॉर्डर विलेजेस है ना, जो बॉर्डर के गांव हैं जम्मू के पास, जो सियालकोट बॉर्डर है, सियालकोट का जम्मू के साथ जो बॉर्डर लगता है, वो सर मैं आपको बताऊं, आपने नहीं, आपके पहले एक बहुत बड़ा इनाम दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को। जो रोहिंग्या शरणार्थी यहां पर आए, सुन लीजिए पाठक साहब, उन सब को सीमा के ऊपर जो गांव हैं वहां बसाया गया था। आगे मुझे बोलने की जरूरत है क्या पाठक साहब? सर आगे मुझे बोलने की जरूरत है? वो रोहिंग्या गांव हैं सारे सीमा पर। उन सब चीजों का भी इंतजाम किया जा रहा है, चिंता मत करिए। मोदी जी ने उन गांवों का भी इंतजाम किया है। आप देखिएगा उन गांवों की भी खबर नहीं जा रही है। और उन गांवों का अब आने दीजिए, थोड़े दिन रुकिए, अभी यहाँ एनआरसी भी होने वाला है। कौन पिछले 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल में कौन से लोग हैं जो घुसपैठिए हैं? पिछले 40 साल में कौन घुसपैठिए हैं? सिर्फ वहां की डेमोक्रेसी नहीं चेंज की गई सर, झारखंड हो, आसाम हो, बंगाल हो, जितने सीमावर्ती राज्य है सबकी डेमोग्राफी चेंज करने का काम इस कांग्रेस की सरकारों ने किया है। तो सर अभी चलिए, वो तो जब होगा होगा, जरा महाराष्ट्र की बात कर लें सर। आखिर के 5 मिनट बचे शो के सर, महाराष्ट्र की बात कर लें अभी। मराठा वर्सेस ओबीसी, जरंगे पाटिल वर्सेस लक्ष्मण हाके। अभी अम्बेडकर जी, प्रकाश अम्बेडकर अब प्रकाश अम्बेडकर जी भी आ गए हैं उसमें। आज पूरे कोल्हापुर में उन्होंने एकदम डेरा बसा के रखा है, जिस प्रकार से ओबीसी के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं कि दिस, और कहा कि जो सरसकट नहीं हो सकता, और उन्होंने एक्सप्लेन किया अम्बेडकर जी। तो पाठक साहब जो बता साहब बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है, कैसे आप निपटाओगे इसको? बिकॉज दिन ब दिन एनिमोसिटी बढ़ता जा रहा है, मराठा समाज और एग्रेसिव हो रहा है, ओबीसी समाज और एग्रेसिव हो रहा है। अब प्रकाश अम्बेडकर जी भी यात्रा लेके जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। कैसे कंटेन करेंगे और कैसे इसको वोट शेयर में तब्दील करेंगे आप? प्रदीप जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि 2024 में अक्टूबर में चुनाव होने जा रहा है, और इस महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि जरांगे पाटिल हो, शरद पवार हो, या कांग्रेस हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, इन लोगों की मंशा क्या है। ये जो महाराष्ट्र प्रदेश है सबसे अच्छा और सुदृढ़ प्रदेश है। यहाँ की जनता ये जानती है कि इन लोगों का काम क्या है, ये लोग क्या करवाना चाहते हैं। जो सबसे शांत प्रदेश है, जो भाईचारे का प्रदेश है, जो एक साथ मिलकर के ओबीसी, मराठा और बाकी के लोग रहते हैं, ये उनके अंदर किस तरह का फूट और किस तरह की चीजें डालना चाहते हैं, किस तरह की चीजें करना चाहते हैं। जरांगे पाटिल साहब का तो सब कुछ सामने आ गया है। जरांगे पाटिल साहब का जो बयान आया उसके बाद से सब लोग समझ गए, इसीलिए उनकी रैलियों में या उनके उसमें मराठा समाज के लोग जाना बंद कर दिए एक तरह से, आप देखिए तो। दूसरी चीज, जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी के सवाल को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने पूरी तरह से एड्रेस किया है, और उसको उन्होंने बताया कि किस तरह से हम सब चीजें करेंगे। बिना ओबीसी समाज को नुकसान हुए मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे। और 2014 में जब
देवेंद्र जी की सरकार आई थी तो उन्होंने दे करके दिखाया, टिका करके दिखाया, और पुलिस भर्ती से लेकर के बाकी सभी चीजों में उनको दे करके दिखाया। ये हुआ कब? ये शरद पवार की जब सरकार आई 2019 में, उसके बाद से ये सारी चीजें होने लगी। शरद पवार जी ने जानबूझ करके ये सब चीजें करवाई। ये जो वितंडावाद खड़ा किया गया, ये शरद पवार की देन है, ये शरद पवार जी की चाल है। उस चाल में उन्होंने सबको फंसाया कि पाठक साहब, एक दूसरा मुद्दा है कि आप नागपुर से हो, सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं खड़ा करने दिया। ये सारी चीजें शरद पवार की गढ़ी हुई है। आपने ही ये सारी चीजें की है। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना वकील तक ढंग से पैरवी नहीं की। अगर पैरवी किया होते तो ओबीसी का मामला या सर आप गलत बोल रहे हैं, सर आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं जय पाठक साहब, आप गलत बोल रहे हैं। मैं जरा सुधार कर दूं, सिर्फ वकील की बात नहीं थी, कोई भी वकील खड़ा हो जाता। मैं कहता हूं किसी लॉयर का असिस्टेंट भी खड़ा हो जाता वहां पे, तब भी जीत गए थे। बिल्कुल। लेकिन आप कर रहे हैं सर, मैं कुछ और बोल रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए सर। जो मराठी में एफिडेविट दिया गया उसकी ट्रांसलेशन नहीं मिली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, उसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं दिया गया। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जब आप ऑर्डर पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, जो 11 एनेक्शर साथ में थे, 3 बार मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 3 के 4 बार, उसका ट्रांसलेशन नहीं पहुंचा। सर ये बात तो अब आप बोलेंगे ना सर, हम तो बीजेपी में नहीं है, लेकिन हम लोग तो अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने काम किया, जो देवेंद्र जी ने काम किया, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये बीजेपी को बार बार बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला सर? सर ट्रांसलेशन नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, कैन यू बिलीव इट? ये क्या है? आप नागपुर से आ रहे हो पाठक साहब, ये सिर्फ और सिर्फ शरद पवार साहब की चाल थी। शरद पवार साहब मराठा आरक्षण नहीं दिलवाना चाहते थे। शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद मराठा आरक्षण नहीं दिए। शरद पवार साहब की ये चाल थी कि वहां पे मराठी में इस तरह से लिख करके दे दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार बोला कि यहाँ अपना वकील खड़ा किया, तो शरद पवार ने ये डिसाइड किया कि हमारा वकील ही नहीं जाएगा। पाठक साहब, आप मैं और भी संगीन आरोप जो लगा है, आप नागपुर से हो। अनिल देशमुख ने मराठा समाज को आरक्षण से वंचित रखा, और उसके बाद उनको पता था कि जैसे ही देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार आई, शिंदे साहब के नेतृत्व में, वैसे ही उन्होंने जरांगे पाटिल को खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद ये सारा वितंडा। अनिल देशमुख ने संगीन आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस जी पे। उन्होंने कहा कि एफिडेविट साइन कीजिए, उसमें उद्धव ठाकरे जी पर आरोप है, आदित्य ठाकरे जी पर आरोप है, अनिल परब पे आरोप था, और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स थे। और अनिल देशमुख जी ने कहा, उन्होंने रिफ्यूज किया, ही रिफ्यूज टू साइन, इसलिए बोला कि मैं जेल जाने को तैयार हूं, हर चीज करने को तैयार, इनफैक्ट कॉन्टेम्पलेटिंग सुसाइड, पर ये नहीं करूंगा। तो ये संगीन आरोप के बारे में, दोनों नागपुर से हैं, देवेंद्र फडणवीस, अनिल देशमुख, आरोप को कैसे देखते हो आप तो वहीं से हैं, ग्राउंड रियलिटीज आपको मालूम है क्या हुआ? प्रदीप जी, क्या मजेदार बात है, ये पूर्व गृह मंत्री कितना मतलब मजबूर है, कितना उसके अंदर कोई पावर ही नहीं थी कि एक आदमी उसके पास आ रहा है और बता रहा है कि इस तरह से करना है, और वो आदमी बेचारा बन के बैठा हुआ है, और वो उस समय नहीं बता करके, जब उस आदमी को जेल हो गई, अब चुनाव आने को है, तो दुनिया भर की चीजें देवेंद्र जी के खिलाफ लगाने का काम कर रहे हैं। इसके मूल में भी शरद पवार साहब है। शरद पवार ये चाहते हैं, शरद पवार साहब को ये विश्वास हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस के सामने हमारी एक नहीं चलने वाली है। देवेंद्र जी को इस महाराष्ट्र की जनता ने अपना मान लिया है, सर समाज ने अपना मान लिया है। लोकसभा के बाद जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें शरद पवार साहब को मुंह की खानी पड़ी, उनकी सारी चाणक्यगिरी समाप्त हो गई, फेल हो गई।
तो उन्होंने एक बेचारे को आगे कर दिया है, अनिल देशमुख नाम का। अनिल देशमुख बेचारा 2.5 साल उनके लिए 1.5 साल जेल रह करके आया, उन्हीं के चक्कर में तो जेल रह के आया। और इतना गया गुजरात गृह मंत्री, इतना मतलब अति संवेदनशील गृह मंत्री, उनको ये तक नहीं पता था कि ये कार्रवाई करने के बजाय आज वो इतने 1.5 सालों 2 सालों बाद आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन विश्वास करेगा आपके पास? मैं चैलेंज करता हूं अनिल देशमुख जी को, अगर आपके पास जरा सा भी नैतिक जिम्मेदारी बची है या शरद पवार साहब के पास बची है, आपके पास देवेंद्र जी के खिलाफ कोई भी सबूत है, आप न्यायालय से लेकर के मीडिया के पास आइए। झूठी चीजें दिखाने से कुछ नहीं होगा। वो पेन ड्राइव जो आप दिखा रहे हैं, वो पेन ड्राइव को मेरा चैलेंज है कि सार्वजनिक करने की हिम्मत दिखाइए। वो झूठा पेन ड्राइव मत दिखाइए। देवेंद्र जी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम मत करिए। तो आपके मुताबिक अनिल देशमुख जी झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ किसके कहने से बोल रहे हैं? अनिल देशमुख जी 1.5 साल शांत थे, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनके ऊपर दबाव डलवा करके शरद पवार साहब झूठ बुलवा रहे हैं। अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, ये तो 100% सत्य है, लेकिन उनके पीछे बड़ी ताकत है। वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप झूठ बोलिए। अगर उनके पास सच्चाई है, दोनों लोगों के पास, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, शरद पवार साहब के पास अगर देवेंद्र जी के खिलाफ कुछ है तो उसको सार्वजनिक करें, या अनिल देशमुख के पास है तो उनको ये महाराष्ट्र की जनता की तरफ से मैं चैलेंज करता हूं कि उसको सामने रखें। वो सामने रखने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी खड़ा करने के लिए थैंक यू सो मच की बातें कर रही है। जय श्री राम। पर अब आप बालक बुद्धि बोल रहे हैं, पता नहीं क्या, वो क्या मंगलसूत्र, भैंस भैंस ये सब, अब ये सब, अरे यार व्हाट इज योर सोल्यूशन? आप सोल्यूशन तो बताइए। ग्रामीण क्राइसिस चल रहा है, देयर इज अ ह्यूज। नमस्कार सर।